Students, today we will discuss the topic atomic structure. So today we will discuss the brief introduction of atom and what is orbit, subshell and orbitals. Okay, so first I would like to clear the meaning of atom. What is the meaning of atom? So atom is what actually, if we define atom, आपका दो वर्ड से मिलके बना है. One is A plus term. Term टोमियो वर्ड से बना है. It is taken from the word tomio. A means not, tomio means to be cut. To be cut. Not to be cut. That is, it is the smallest particle of matter which cannot be cut. Not to be cut further into another smaller fragments. अगर आप अर्ली इन द रूम में सुबह देखें, जब सन रेज रूम में एंटर करती हैं तो रूम में डस्ट पार्टिकल घूमते दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वो सनलाइट की जो छोटी छोटी रेज अंदर आते हैं रूम में थ्रू योर वेंटिलेटर्स और डोर और विंडोज स्लिट्स, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस में आप रूम के डस्ट पार्टिकल देखते हैं घूमते रहते हैं. वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल आप पकड़ लें और उसके 60 पार्ट कर दें. यू कैन डू अप टू 60 पार्ट बट यू कैन नॉट डू बियॉन्ड 60, दैट इज 61 पार्ट. तो आप समझ लीजिए आप कि 60 तक तो उस पार्टिकल को आप डिवाइड कर सकते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को. 61 इज वेरी टिपिकल एंड डिफिकल्ट टू डू दैट. तो उतना छोटा एक एटम होता है. That's why we say that कि 60 के बाद नहीं कट कर सकते. Now you can imagine in your mind how small the size of atom is. So that's why we say that it is the smallest particle of matter which cannot be cut further into another smaller fragments. But it was the old concept or classical concept. According to modern concept, atom can be divided because today we know about the concept of electron, proton and neutron. So existence of electron, proton and neutron indicates that atom can be divided. So because all discoveries has been done after 18th century, so that's why we can say here that according to modern concept, because these fundamental particles have been discovered, so existence of these particles indicates that atom can be divided. So it was all about the atom. So atom is very very small. और सब atom की जो structure है, it is assumed to be spherical. The structure of atom is assumed to be spherical. Spherical means ये छोटा सा. तो आप जानते हैं जितने भी वेल नोन ज्योमेट्रीज हैं, स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सबसे कम वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब. और क्योंकि सबसे छोटा चीज स्फेरिकल होता है और सबसे कम वॉल्यूम भी स्फीयर का होता है, इसलिए हर एक सबसे छोटी चीज की शेप स्फेरिकल कंसीडर की जाती है. सो एटम की स्ट्रक्चर लगभग इस तरह से एज्यूम की जाती है कि इट इज द सेंट्रल पार्ट एंड दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट. एंड यू नो वेरी वेल कि दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड हियर न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कॉल्ड ऑर्बिट और शेल और energy level also. It is also known as energy level because all levels, जो सर्कुलर लेवल्स बनाए इन सब की एनर्जी फिक्स होती है अपनी. कुछ एनर्जी इसकी होगी, कुछ इसकी, कुछ इसकी. तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये थर्ड ऑर्बिट. से एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट इज 1 E1. सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बेटे E2 मान लें हम. थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आप E3 मान लें. तो याद रखना हमेशा सबसे कम एनर्जी E1 की होती है, फिर E2 की उससे ज्यादा होती है, फिर E3 की. इट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. यू शुड नो. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज यू हैव रीड अबाउट दैट इन अर्लियर क्लासेस. सो सिंपल यू शुड नो अबाउट दैट कि दिस इज एटम. द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस in which protons and neutrons exist, and in the outermost part in which electron revolve, it is called, actually this one is orbit. So today we will discuss our main focus will be on the definition of atom and orbit, subshell and orbital. So it is simple. About here you can see what is nucleus and what is orbit. Now what is the actual meaning of orbit? So orbit होता क्या है, अब मैं आपको orbit के बारे में थोड़ा सा बता दूं. Orbit, it is the region around the nucleus in which electron revolve, and it is the region where the probability of finding electron is 0. This is the important point. It is the region around the nucleus in which electrons revolve, and the probability of finding electron is 0. Each orbit is divided into small orbits called suborbits. So what are suborbits? And these orbits are also known as
सबशेल। तो सबशेल क्या होता है, हर ऑर्बिट छोटी छोटी ऑर्बिट में डिवाइड होती है। जैसा हमने कहा हमारी इंडिया कंट्री है, तो इंडिया पूरी ऑर्बिट हो गई। इंडिया के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स बने हुए, वो आपके सब ऑर्बिट हो गई, सबशेल हो गई। और उनके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, वो आपके ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ऑर्बिटल इंडिया के अंदर ही है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही है। इसी तरह ऑर्बिट के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो द सेम थिंग इज हियर। तो सबशेल क्या होता है, ईच ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ऑर्बिट्स कॉल्ड सबशेल। तो इट इज सब डिवीजन ऑफ सेल। तो सबशेल को बेसिकली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एस, पी, डी, एफ। होती और भी है बेटे जी, एच, आई, लेकिन हम इन चारों को मेन मानते हैं। तो आपको एसपीडीएफ पता होने चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी एलिमेंट्स है प्रोडक्ट टेबल में वो सब इन्हीं के बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं। तो आपको बेसिकली 4 टाइप्स के पता होनी चाहिए। एस सबशेल इज known as sharp, P is designated as principal, D is designated as diffuse, and F is designated as fundamental. तो जैसे मैंने कहा, अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज एक स्कूल है, तो होल ऑफ द स्कूल इज ऑर्बिट। ओके, उस स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के क्लासेस हैं। तो स्कूल के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी सबशेल हो जाएंगी। और उस सबशेल के अंदर फिर भी सेक्शन बने हुए हैं। सपोज क्लास 12th है, तो 12th के सेक्शन हो गए 12th A, 12th B, 12th C, वो आपके ऑर्बिटल कहलाएंगे। फिर जिस तरह फिक्स है कि एक क्लास में रूल होता है कि भाई 35-40 स्टूडेंट से आधे नहीं होने चाहिए, उसी तरह से ऑर्बिटल के अंदर भी फिक्स है कि हर एक ऑर्बिटल की लिमिट है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखें आप। तो ऑर्बिट के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स अब मैं बता दूं आपको। एस, जैसे हम बात करें, एस इज ए सबशेल कंटेनिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं इसके अंदर। और जो ऑर्बिटल होते हैं एस के अंदर, ये जस्ट हाफ ऑफ दिस, इसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है। इसको ऐसे 1 ब्लॉक बना के दिखा देते हैं। अब सपोज आपके पास पी सबशेल है, पी सबशेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे वो 6 एकोमोडेट कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे पी के अंदर, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस 3। इसको सिंपल इस तरह से दिखा देते हैं हम लोग, 3 ब्लॉक बना दिए। इसी तरह से आता है डी आपके पास। डी इज ए सबशेल कंटेनिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। और जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जस्ट हाफ हो जाएंगे 5। और इनको ऐसे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ऐसी एफ होता है। एफ की लिमिट है कि एफ के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो आपके 14 आएंगे। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट विल बी 7। और इसको ऐसे 7 ब्लॉक बना देंगे, 3 4 5 6 एंड 7। सो इट वाज द सिंपल क्लासिफिकेशन। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये भी ऑर्बिट। अब सिंपल अगर हम आपसे एक बात और करें कि सपोज आप कोई स्कूल है, उस स्कूल के अंदर राहुल नाम का एक बच्चा पढ़ता है और उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक के क्लासेस हैं, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ सेक्शंस भी हैं और हमें उस राहुल को ढूंढना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राहुल। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम नहीं पता लगा सकते जब तक कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि वो बच्चा किस क्लास में है। हमें इतना पता है कि राहुल है, तो बहुत सारे राहुल हो सकते हैं वहां, और राहुल किस क्लास में ये भी हमें नहीं पता। तो अगर आपको जब तक एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि राहुल क्लास 12th A में रोल नंबर 40 है, तो आप सीधा जाके वहां बैठ के इसको देख सकते हैं। और सिंपल राहुल फाइंड आउट करना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने कहा राहुल को इस स्कूल में ढूंढना है, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी राहुल को मिलने की बहुत कम है, 0 मिनिमम। हम कहें नो राहुल इस स्कूल में क्लास 12th A में है, तो बाकी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। अब राहुल के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बढ़ गई आपकी। सो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये, तो व्हेन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 0 इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यहां पर 0 है तो इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम
प्रोबेबिलिटी जीरो और मैक्सिमम के बीच में है, तो इट इज द सबशेल। तो अब आपके पास ऑर्बिट क्या बना, ऑर्बिट की सिंपल डेफिनेशन, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल किसके अंदर होता है, सबशेल, और सबशेल किसके अंदर होगा, ऑर्बिट के अंदर होगा। तो ऑर्बिट के अंदर हम बताएंगे ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल हो जाएंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो देयर इज अ लिमिट कि कौन सा सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल जस्ट हाफ होते हैं। अब इन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती है, अभी हम ड्रॉ करेंगे, आगे बताएंगे आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, पूरा टॉपिक आएगा। इट इज द सिंपल ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सो इट इज व्हाट, इट इज सिंपली द क्लासिफिकेशन ऑफ सबशेल। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सबशेल, ऑलवेज रिमेंबर SPDF, एंड S स्टैंड्स फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। ऐसा नहीं है कि खाली इतने ही होते हैं, ये GHI तक भी जाते हैं, बट अभी खाली हमारे पास 4 हैं, जिनसे हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल जो है इन्हीं 4 सबसेल से मिलके बनी है, जिनको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। दिस ऑर्बिट इज डेजिग्नेटेड एज स्मॉल n, तो n मे बी 1 2 3 4 लाइक दैट, 1 2 3 4 5, this is our first orbit which is called K, it is L, it is M, it is N, O, P, something like that. So this is called actually orbit. तो इसका नाम K L M N O से क्यों पड़ा, कितना अच्छा होता कि इनका नाम ABCD से पड़ा होता, K L M N O से क्यों पड़ा। आपको पता है जितनी भी लैंग्वेज है मोस्टली सब की सब जो है देवनागरी लिपि, देवनागरी से बनी है सारी की सारी। और जो हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं, जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें 2 तरह के वर्ड्स होते हैं जिससे मिलकर कोई भी चीज बनी होती है। एक अल्फाबेट को हम कहते हैं वॉवेल्स, जिन्हें आप स्वर बोलते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स। तो हिंदी में जो वॉवेल्स होते हैं आ से लेके आह तक होता है, और जो मेन अल्फाबेट है वो का से स्टार्ट होती है, का ख ग। सो दैट्स व्हाई द ऑर्बिट इज डेजिग्नेटेड K ऑनवर्ड्स। अब हिंदी में तो नहीं ले सकते थे हम, सो बट आई एम सेइंग दैट व्हाई दिस स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली K, सो दैट्स व्हाई वी हैव द हियर K। तो KLMNOP समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, KLMN आर द ऑर्बिट्स, SPDF आर द सबशेल, एंड देन वी विल डिफाइन कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के भी नेम होते हैं, ऑर्बिटल्स के नेम कैसे होंगे ये भी मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अलग अलग। हर ऑर्बिटल्स की लिमिट है, जो नेम जो डेजिग्नेटेड है वो आपको पता होने चाहिए। तो कैसे आप इसको बताएंगे, सपोज मैंने कहा S के अंदर एक सबशेल है जिसको आपने यूं बोला, P के अंदर आपने 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, इसका नाम S ही है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, पहले वाले का नाम बेटे PX है, दूसरे वाले को PY बोलते हैं, थर्ड वाले को PZ बोलते हैं। ऐसे D के अंदर आपने 5 ऑर्बिटल्स बनाए थे, आपको याद होगा अभी, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। पहले वाले का नाम बेटे D सफिक्स में XY, दूसरे वाले को बोलते हैं DYZ, थर्ड वाले को बोलते हैं DZX, फोर्थ वाले को बोलते हैं हम लोग DX² माइनस Y², और फिफ्थ वाला रहता है हमारे पास DZ²। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ SPD सबशेल। इसी तरह से F का आ जाता है हमारे पास, F में 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला आ जाएगा आपके पास FXY, बिल्कुल इसी तरह से ये आ जाएगा FYZ, थर्ड हो जाएगा बेटे FZX। इस तरह से 3 बने, अब 3 कैटेगरी इसकी बन जाएगी, FX² माइनस Y², FY² माइनस Z², FZ² माइनस X² एंड FXYZ। ऑलवेज रिमेंबर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जो D ऑर्बिटल्स होता है, D orbital, it contains center of symmetry. We will discuss in detail later on what is this. So it is called center of symmetry or center of inversion. Center of symmetry or center of inversion. Which of the following orbital contain this center of symmetry or center of inversion? बहुत आता है मेटल एग्जाम में क्वेश्चन, तो always remember only this D orbital contain center of symmetry or center of inversion. तो आज की क्लास में मैंने आपको सिंपल से डिस्कस किया एटम के बारे में, तो आपको पता ही था, मेन ये था कि सबशेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, थैंक यू।